Hi guys, good evening. My name is Sayam Jain and I am senior intern at Disha Finance in stock market analyst domain. Disha Finance is first of its kind digital loan referral platform based out of Mumbai who provide personal loan, business loan, loan against property, working capital loan, unsecured loan and many other types of loans. One of the major service line in the company is investment in stock market for which interns are being hired. So today I'll talk about some insights of how to do analysis or how to do stock market analysis based on fundamental basis. And yeah, let's get started. So yeah, in this video, the main objective of this video is to provide sector-wise analysis. Uh, Today we'll learn how to do sector-wise analysis of stocks and how to manage different stocks presenting or belonging to the same sector. One of the objective of this video is to enhance your skills on research, how to research about stock market on Google. There's a lot of data available on Google, Money Control, various platforms and various websites, but we have to fetch the data which is of our use. We should not collect unwanted data. Okay. In this video you'll come to know about more about stock market, and if you are a beginner then this video is definitely for you because we'll learn from scratch how to do a fundamental analysis of a stock based on sector. So yeah, let's get started. I hope my screen is visible. So firstly we'll write about the company. For this, for example, we are doing this analysis on the basis of infrastructure sector. So we'll give it a heading here, infrastructure sector. Now, what all does belong in infrastructure sector? Infrastructure is anything that helps to build the infrastructure of a company. I can switch to Hindi at this point of a time because the audience listening to this video is based popularly in Hindi regions. So yeah. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो भी हम अपने आसपास अपनी गवर्नमेंट को देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हुए, या पर्सनली जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, चाहे वो हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए हो, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हो, चाहे ऑफिस कंस्ट्रक्शन के लिए हो, किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. बीइंग बिल्डिंग ऑफ रोड्स, डैम्स, building of like new parliament building of statues. Infrastructure sector is everywhere and it is a huge demanding sector in recent times, and also it will be in demand for rest of our lives क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमेशा बनता रहेगा. जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा देश का उतना देश आगे बढ़ेगा. सो ओके, कमिंग टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, बहुत सारी चीजें आती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर. कंस्ट्रक्शन कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, स्टील कंपनीज, आयरन स्टील कंपनीज एंड वेरियस स्टॉक्स जो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आती हैं. सबसे पहले हम हेडिंग दे देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कंपनी नेम. So what we have to do, we have to go simply on Google. Okay, I think I have to share my screen again. Yeah, now it must be visible. You simply have to go to we have to search stocks in infrastructure sector. सिंपल. सो हम यहाँ पर आ जाएंगे, हमको यहाँ दिखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में. ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है.
हमें मनी कंट्रोल के अलावा भी अगर कोई और सी वेबसाइट दिखे तो हम वहाँ जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट को ट्रस्ट करते हुए चलते हैं। काफी इंफॉर्मेशन मनी कंट्रोल की वेबसाइट हमको दे देगी, लेकिन फिर भी हमें काफी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। अब ये सारे स्टॉक्स आ गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के, ओके, लेकिन ये काफी कम स्टॉक्स। आप ये देखिए कि ऑल ओवर इंडिया so many companies are listed on stock market of infrastructure sector, but only these much companies are available or is shown in money control. You know why? Because they must be some popular companies or they must be companies जिनका डेटा मनी कंट्रोल के पास अवेलेबल होगा। कुछ कंपनीज का डेटा किसी और वेबसाइट के पास अवेलेबल है, तो दैट डजंट मैटर। अब यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पर सारे सेक्टर्स अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे ऑटो एंसिलरीज, अगर हम ऑटो पार्ट्स की बात करते हैं तो ऑटो एंसिलरीज सेक्टर बहुत सारी चीजें दिखाएगा ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर बात करें, देखिए यहाँ सीमेंट सेक्टर अलग से शो कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अलावा सीमेंट सेक्टर, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का पार्ट ही होता है सीमेंट सेक्टर, लेकिन इन्होंने अलग से बाइफरकेट करके दे रखा है। इट्स ओके, हम इसे भी देखेंगे। ये देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल एस्टेट, यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का पार्ट है। बस ये सब पार्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के, इसलिए इनको अलग से बाइफरकेट करके यहाँ पर दे रखा है। नेवरदलेस अब हम देखते हैं कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स को लेते हैं और इनको एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी नेम इज HG इंफ्रा इंजीनियरिंग। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। फर्स्ट कॉलम हमारा क्या था? हमारा फर्स्ट कॉलम था नेम ऑफ द कंपनी। सबसे पहले हम अपने कंपनी नेम में ऐड कर देंगे अपनी कंपनी का नाम, जो है HG इंफ्रा। अब देखिए यहाँ पर HG इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसका सेक्टर हमको यहाँ पर दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल। जो हमको प्राइस दिख रहा है, आज का स्टॉक का प्राइस 528 रुपीज, जो कि 10 रुपीज से बढ़ा है आज के दिन, जो कि 2.01% बढ़ा है आज, क्योंकि ग्रीन में शो हो रहा है। ओके, देख अब पहले हम इसको मनी कंट्रोल की वेबसाइट के बारे में जान लेते हैं कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट के बारे में अंदर है क्या क्या चीज। सबसे पहले तो हमको ये दिखाएगा स्टॉक, किसी भी स्टॉक का नाम हम ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टॉक सर्च बार में खुद कुछ भी स्टॉक डाल के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, हमको यहाँ दिखेगा इसका डे रेंज दिखेगा, पूरे दिन में कितना ऊपर नीचे हुआ ये 52 वीक रेंज दिखेगा हमको। और हमको इसका कंपनी का स्वॉट एनालिसिस दिखेगा, स्ट्रेंथ्स वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स। और हमको इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। ये चार्ट आएगा, इसको हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं इस चार्ट को, ओके। यह कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में आ गया, रेवेन्यू 23.3% था, 3 ईयर CAGR ग्रोथ कितना कितना है, ओके। नीचे थोड़ा सा हम चलेंगे तो ये सब टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बातें हैं। और हम नीचे आते थे, प्राइस परफॉर्मेंस कितना है, 1 वीक में कितना बढ़ा घटा। अब ये बढ़ा है तो इसलिए ग्रीन में आ रहा है, अगर घटा होता तो रेड में आता। तो मतलब ये शेयर काफी रन कर रहा है। देखो इसका मतलब क्या होता है, रन कर रहा है मतलब कंपनी अच्छी चल रही है, कंपनी अच्छी चल रही है मतलब सेक्टर अच्छा चल रहा है। मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन कंपनी से मिलकर सेक्टर बनता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज वन ऑफ द बूमिंग सेक्टर्स। ये कंपनी की न्यूज के बारे में आ गया कि कंपनी की क्या क्या न्यूज, लेटेस्ट न्यूज आई है। और अब हम सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमको दिखेगा बैलेंस शीट, PNL, क्वार्टरली एनालिसिस, हाफ ईयरली एनालिसिस, 9 मंथ्स एनालिसिस, ईयरली रिजल्ट्स, कैश फ्लो रेशियोज, कैपिटल स्ट्रक्चर। पूरी कंपनी का इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट में मिल जाएगा। दिस इज मनी कंट्रोल की वेबसाइट, ओके। और आप ज्यादा नीचे जाएंगे बिल्कुल तो हमको ये सब कुछ भी दिख जाएगा इस कंपनी के बारे में, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कौन सी सिटी से बिलोंग करती है कंपनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर हम आगे जाके स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए किसी भी कंपनी के बारे में, ओके गाइस। तो अब हम
जानते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में करेंगे क्या, हम सेक्टर को, कंपनी को कैसे हम एनालिसिस करेंगे उसका डेटा एक्सेल में लेकर। तो सबसे पहले हमने कंपनी का नेम कॉपी किया, हम उसको अपनी वर्कशीट में आके पेस्ट पेस्ट के दो ऑप्शन आते हैं, मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग एंड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। सोर्स फॉर्मेटिंग रखेंगे तो जो उनका फॉन्ट था बोल्ड वो वैसे ही शो करेगा, लेकिन यहाँ हम डेस्टिनेशन थीम में जाके करेंगे तो यहाँ हमारी शीट के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा खुद ही। सेकंड कॉलम में बात करते हैं, सेकंड कॉलम में आएगा विच सेक्टर कंपनी बिलोंग्स टू, कंपनी बिलोंग्स टू विच सेक्टर, company belongs to infrastructure general sector. Okay, then we'll write simply infrastructure sector. Okay, then in third column we are coming, third column will add the details of BSC and NSC, the current price of the stock in BSC and NSC. Now guys, what is the difference between BSC and NSC? BSC is Bombay Stock Exchange and NSC is National Stock Exchange. There is no much difference between these two stock exchanges, but कुछ कंपनीज BSC में रजिस्टर्ड होती हैं, कुछ कंपनीज NSC में रजिस्टर्ड होती हैं, और काफी सारी कंपनीज BSC और NSC दोनों में रजिस्टर्ड होती हैं। ओके, तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी BSC में रजिस्टर्ड है या NSC में रजिस्टर्ड है, बस ऐसा है कि कुछ बॉम्बे की ज्यादातर कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं, तो इसमें टेंशन लेने की वाली बात नहीं। अब यहाँ पर दो कॉलम दिखा रहा है, NSC और BSC। हम सबसे पहले NSC का जो हमने प्राइस है वो ले लिया 528 रुपीज, हम लिख लेंगे 528 रुपीज, और ये NSC का प्राइस था, NSC में 528 रुपीज। अब BSC का प्राइस देखेंगे, BSC का है 528.5। मैंने बोला तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है, 5.5 का फर्क है, 0.5 का फर्क कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता है, तो इस वजह से दोनों को इक्वलाइज। और क्या होता है कि ये सप्लायर डिमांड के बेसिस पे होता है, तो ये प्राइस कल अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा। कभी ऐसा होता है कि NSC का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है, कभी ऐसा होता है BSC का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है, वो थोड़ा आर्बिट्रेज के रूल्स आपको समझने पड़ेंगे, वो अभी बेसिक है तो अब बेसिक में इतना सब कुछ नहीं समझेंगे। अब यहाँ पर एक डिटेल ऐड करेंगे, 5 ईयर हाई, मतलब ये जो स्टॉक था हमारा HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, पिछले 5 साल में उसका हाईएस्ट प्राइस क्या टच किया, पिछले 5 साल में उस स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस क्या टच किया, ये हमको कौन बताएगा, ये हमको बताएंगे टेक्निकल चार्ट्स। टेक्निकल चार्ट्स में ये ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखा रहा है कि 5 ईयर कहाँ से हमको मिलेगा इसका, तो व्हाट विल डू, we'll do one thing, we will go to a new website. This website is named as TickerTape. TickerTape is also one of the most useful websites if you want to search about any stock or any stock related details you want. So what is the name of the company that we are searching? HG Infra. C, HG Infra, we got it. Now we have this chart, हमारे पास ये चार्ट अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ 1 वीक का डेटा देख सकते हैं, 1 मंथ का डेटा देख सकते हैं। अब हमें देखना है 5 ईयर हाई, क्योंकि हमारा एजेंडा क्या है कि 5 ईयर का हाईएस्ट क्या था। ओ नो, 5 ईयर का हाईएस्ट तो यहीं पर ही है, 30 जुलाई 2021 को 5 ईयर हाई, मतलब जो कल की डेट थी, कल मार्केट बंद हुआ था फ्राइडे को,
कल की डेट जो थी 30 जुलाई, तो वो इस स्टॉक का 5 ईयर हाईएस्ट प्राइस था 528 रुपीज। 5 ईयर हाई में लिखेंगे 528 रुपीज। एक और कॉलम बनाएंगे हम, डेट ऑफ हाई, डेट ऑफ हाई, डेट ऑफ हाई कौन सी डेट को ये हाईएस्ट गया? 30 जुलाई 2021। ओके, now we come to our next column, 1 year low। ये स्टॉक पिछले एक साल में कितना लोएस्ट गया? we'll see this by 1 year का यहाँ पर सेट कर देंगे हम टाइमलाइन, और 1 ईयर की टाइमलाइन ये आ गई है 30 जुलाई 2021 से लेकर 31 जुलाई 2020। अब इसका हमको लोएस्ट पकड़ना है। देखो लोएस्ट कहाँ पर बैठ रहा है इसका, समवेयर अराउंड यहाँ पर जाके मिलेगा हमको इसका लोएस्ट, जो कि 2 नवंबर 2020। 2 नवंबर 2020 पे हमारा प्राइस था 175.8 रुपीज। 175.8 रुपीज। डेट क्या है? 2 नवंबर 2020। 2 नवंबर 2020। यहाँ हम लिख देंगे डेट ऑफ लो, सिंपल। तो हमारे पास काफी सारा डेटा आ गया है अभी, ठीक है। अब हमारे पास आगे कौन से कॉलम्स हैं जो हमको डालने हैं? अब ये जो डेटा था ये सिंपल एक डेटा था जो हमको डेटा कलेक्ट करके अपनी एक्सेल शीट में डालना है। अब आगे का काम जो होगा वो आगे का काम करेंगे फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूलाज का एक्सेल शीट में बहुत बड़ा रोल है। हम जैसे ही फॉर्मूलाज यूज करते हैं हमको काफी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो हमको एनालिसिस करने में काफी इजी काम करती है। तो पहली हेडिंग है हमारी चेंज सिंस 2020 लो। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं चेंज सिंस 1 ईयर लो, क्योंकि 1 ईयर लो का हमने चेंज लिया है। 1 ईयर वो 2020 में ही जाके बैठा, तो चेंज सिंस लो बोल सकते हैं हम खाली। ओके, अब चेंज कितना हुआ? हमारा करंट प्राइस है 528.5 रुपीज और 1 ईयर लो का प्राइस है इतना, तो हमारा चेंज आया 352.7 रुपीज। मतलब ये स्टॉक 1 ईयर लो से लेकर आज तक 352 रुपीज बढ़ चुका है। वाओ, इससे क्या पता लगता है हमको? ये प्राइस बहुत ज्यादा भाग चुका है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम से रैपिडली ग्रो कर जाती हैं। रैपिडली भी नहीं ग्रो करा उसने, एक साल में ग्रो किया, तो हम देखते हैं कि उस स्टॉक में कितना पोटेंशियल बचा है अब ग्रो करने का, वो कितना ग्रो कर चुका और कितना आगे उसका ग्रो करने का पोटेंशियल अभी बाकी है। तो अभी उसने इतना ग्रो कर चुका है 352 रुपीज। अब हम देखते हैं परसेंटेज चेंज कितना आता है इसमें। परसेंटेज चेंज की बात करें तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज सिंस लो डिवाइडेड बाय 1 ईयर लो। ओके, अब ये जो आया ये न्यूमेरिकल टर्म्स में आया। अब ऊपर परसेंटेज का सिंबल आपको दिख रहा होगा, परसेंटेज के सिंबल पे क्लिक कर देंगे तो ये 201%, मतलब ये स्टॉक 200.63% ग्रो हो गया है। ग्रोथ देख रहे हो सर जी, 200.63%, मतलब दिस इज अ ह्यूज ग्रोथ। वो स्टॉक क्या एकदम चिल्लड़ के भाव पड़ा हुआ था 175.8 और एकदम वो 528 पे चला गया, तो मतलब ये बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग,
डिफरेंस ऑफ लो एंड हाई, डिफरेंस ऑफ लो एंड हाई। हम देखते हैं लो और हाई का डिफरेंस कितना है। हाई कितना था हमारा, 5 ईयर हाई 528 रुपीज, लो कितना था हमारा 1 ईयर लो 175.8, तो हमारा डिफरेंस आ गया 352.2। नेक्स्ट कॉलम, ग्रोथ फ्रॉम लो टू हाई। ग्रोथ फ्रॉम लो टू हाई, तो डिफरेंस तो हमारा ये था, इसको हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, लो से डिवाइड करेंगे। ओके, हम परसेंटेज में सेम आया। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई है, लेट मी चेक क्या गड़बड़ हुई है। ग्रोथ फ्रॉम लो टू हाई, नहीं गड़बड़ नहीं हुई है, वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि 5 ईयर हाई और अपना टुडेज प्राइस ये दोनों लगभग सेम है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ये ऐसे ही आएगा, डिफरेंस ऑफ लो एंड हाई डिवाइड बाय 1 ईयर लो। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग वी हैव difference of high to current, difference of high to current। okay, हाई कितना था, difference of high to current, हाई कितना है हमारा 5 ईयर हाई इतना है, और हमारा करंट कितना है, करंट है 528.5। तो मतलब कि 5 ईयर हाई और करंट में मतलब कि करंट से बस 0.5 रुपीज कम है अपना, मतलब कि 5 ईयर हाई से बस 0.5 रुपीज मतलब ज्यादा है, तो टेक्निकली आना चाहिए 528.5। ऐसा बोल सकते हैं कि सेम प्राइस है, हाई और करंट सेम प्राइस है, तो इस वजह से डिफरेंस दोनों में जीरो होगा, दोनों में डिफरेंस जीरो होगा, तो डिफरेंस बिटवीन हाई टू करंट इन परसेंटेज टर्म्स निकालेंगे, ये वाला इन परसेंटेज टर्म्स, तो ये दिस डिवाइड बाय करंट, और ऊपर परसेंटेज का सिंबल क्लिक कर देंगे। ओके, ये जीरो जीरो दोनों इसलिए आ रहे हैं बिकॉज दोनों प्राइसेस ये सेम है, 5 ईयर हाई और टुडेज प्राइस इज सेम। अगर ये दोनों प्राइसेस अलग अलग होते तो ये अलग अलग हमको शो करता। ओके, ऐसा करके हम इस सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट बना लेंगे, जितने स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट। इसी के नीचे हम सीमेंट सेक्टर ऐड कर देंगे, इसी के नीचे हम सीमेंट सेक्टर के साथ साथ जो भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मिलते हैं वो सारे सेक्टर्स ऐड करके, सेक्टर के स्टॉक्स ऐड करके, ठीक है। मतलब पहली चीज तो हमको ये देखना है कि हमारे स्टॉक्स कौन कौन से हैं जो हमको लेने हैं अपने यूज में। ओके, कंस्ट्रक्शन सेक्टर लेंगे हम, सीमेंट सेक्टर लेंगे, और हम आयरन एंड स्टील सेक्टर लेंगे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें लेकर इसका हम लिस्ट बना लेंगे। ये लिस्ट देखिए कैसे बनी हुई है। आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल।
ठीक है, सबसे पहले हम ये सारी कंपनीज लिख लेंगे, उसके बाद एक सॉर्ट का फिल्टर लगाएंगे। सॉर्ट का फिल्टर, देखिए सॉर्ट का फिल्टर कहाँ से आता है, ये ऊपर दिख रहा है यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पे क्लिक करेंगे, फिल्टर लगा देंगे फिल्टर, तो ये ऐसा ड्रॉप डाउन एरो दिखाई देगा सबसे। ओके, अब हमें उन कंपनीज को देखना है जिन कंपनीज का शेयर प्राइस, करंट शेयर प्राइस लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो बीएससी पे लार्जेस्ट प्राइस है वो हमको शो करेगा ऊपर, और जो लोएस्ट प्राइस है वो हमको सबसे नीचे शो करेगा। ओके, लाइकवाइज दिस 13 रुपीज सबसे नीचे शो कर रहा है और 1200 रुपीज सबसे ऊपर शो कर रहा है, लार्ज एंड टर्बो, जिसको LNT बोलते हैं। तो अब हमको क्या करना है, हम रैंडमली पहले ऐड करते चले जाएंगे अपनी सारी कंपनीज। फॉर एग्जांपल हमने LNT ऐड करी, फिर हमने दिलीप बिल्डकॉन ऐड करी, फिर हमने विशाखा, फिर हमने डालमिया भारत, ये सब चीजें हमने ऐड करी। उसके बाद हम सीधा, मतलब तब तक तो सॉर्टेड नहीं है ना कुछ भी सीन, तब तक हम सिर्फ वहां से देखते गए, नेट से मनी कंट्रोल से उठाते गए कंपनीज और इसके अंदर पुट करते गए। अब उसके बाद जब यहाँ पर हम सारी कंपनीज ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर हम ये सॉर्ट फिल्टर लगाएंगे। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सेलेक्ट किया सॉर्ट एंड फिल्टर, और यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक कर दिया। या फिर इसका एक और तरीका क्या है, डेटा पे गए, डेटा पे जाके यहाँ फिल्टर का ऑप्शन आता है, फिल्टर पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर सारे फिल्टर्स आ गए हमारे पास। ओके, अब हमने इन कंपनीज को फिल्टर करा फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लाइकवाइज ये सब लोग आ जाएंगे लाइक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, largest at the top and smallest at the bottom. Then what we'll do is हम इनको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, now what is this category? हम स्टॉक्स की कैटेगरीज देंगे। जो स्टॉक्स 1000 से ऊपर के हैं हम उनको बोलेंगे लार्ज वैल्यू स्टॉक्स। जो स्टॉक्स 1000 से 250 रुपीज के बीच के हैं हम उनको बोलेंगे मिड वैल्यू स्टॉक्स। जो स्टॉक्स 50 रुपीज से 250 रुपीज के बीच के हैं हम उनको बोलेंगे स्मॉल वैल्यू स्टॉक्स, और जो स्टॉक्स 50 रुपीज से कम के हैं हम उनको बोलेंगे पेटी स्टॉक्स। ओके, नाउ व्हाट, अब हमने पूरी लिस्ट बना ली है, पूरा डेटा हमारे पास आ गया है, अब हमको पता लग गया लार्ज वैल्यू, मिड वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, पेटी स्टॉक्स, ये सारी चीजें पता लग गई है अब हमको क्या करना है, फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप। Final step to know about the potential in the company is this column that is shaded in yellow. ये कॉलम हमको बताता है कि इस स्टॉक के अंदर और कितनी जान बाकी है, मतलब ये स्टॉक और अपना 5 ईयर हाई टच करने से कितना दूर है। क्योंकि कोई भी स्टॉक होगा वो अपना 5 ईयर हाई टच करने के बारे में सोचेगा, वो अपना 5 ईयर हाई टच करने के बारे में सोचेगा। कि ये देखिए जैसे लार्सन एंड टर्बो, उसका आज का प्राइस है 1283.15, लेकिन उसका 5 ईयर हाई है 1558। तो वो ये सोचेगा यार मैं अपना 5 ईयर हाई तोड़ूंगा, 5 ईयर हाई तोड़ूंगा, मतलब कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, और नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा वो अपने 5 ईयर हाई को टच कर जाएगा। अब वो देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो कर जाएगा, वैसे फंडामेंटली, और थोड़ा बहुत हम इसमें टेक्निकली बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल और फंडामेंटल को जब मिला के हम बात करते हैं तो वो चीज हमको पता चलती है। ये लास्ट वाले कॉलम, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, कूल। तो अब हमको पता लगी हैं चीजें। देखिए एक हमारा स्टॉक दिलीप बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन में पोटेंशियल दिखा रहा है 213.09%, 13.09%। How? This stock had a 5 year high of 1247.5, but today it is trading on BSE at 398.45। मतलब ये तो 400 से भी कम का आ गया, और ये कहाँ 1250 के आसपास का स्टॉक पहुंच गया था। तो ये रिपोर्ट, आई थिंक दिस रिपोर्ट वाज मेड इन
दिसंबर 2020, आज है, आज की डेट है 31 जुलाई 2021। आज दिलीप बिल्डकॉन का प्राइस देखते हैं कि क्या है। ये 400 के आसपास था दिसंबर 2020 में। आज दिलीप बिल्डकॉन का प्राइस देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड, 562। दिस शेयर 562। और ये शेयर कितना चला गया था बीच में, 700 क्रॉस कर गया था। मतलब हमें, हमारा एनालिसिस सही था। हमारे एनालिसिस में ये था कि ये कंपनी में 213% अभी पीछे चल रही है अपने 5 ईयर हाई वाले स्कोर से, 5 ईयर हाई वाले प्राइस से। तो मतलब ये कंपनी में आगे जाके कुछ प्राइस एक्शन हो सकता है, और जो कि हमने देखा भी हुआ। 700 से ऊपर चला गया। कौन सी डेट को गया 700 से ऊपर? मार्च 2021 में। मार्च 2021 में शेयर का प्राइस 700 क्रॉस कर गया, जो कि दिसंबर में 400 के आसपास, 400 के नीचे चला गया था, 400 से भी नीचे था। काफी सही है यार। ठीक है, तो इनसे हमें लास्ट वाले कॉलम में पता लग जाता है कि कौन से स्टॉक में कितना अभी जान बची है। लेकिन ये हमारा फाइनल स्टेप नहीं है, ये फाइनल स्टेप नहीं है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो इन्फ्लेटेड फिगर्स शो करता है। उन कंपनीज का हमको क्या करना पड़ता है, हम पहले ये देखेंगे कि ओके 213.09% इसके अंदर अभी है, मतलब अभी ऊपर जा सकता है। तो उसके बाद फिर हम इस कंपनी का फाइनेंशियल्स चेक करेंगे, इसके पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, वो सारी चीजें, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी रिपोर्ट, वो सारी रिपोर्ट्स चेक करके अपने एनालिसिस करेंगे। बैलेंस शीट एनालिसिस, पीएनएल एनालिसिस, वो सारे एनालिसिस करने के बाद हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि हमको ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Thank you so much guys, this is all from my side for today. We'll meet you in next class. Thank you so much. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.d-sha-disha.com या फिर हमें व्हाट्सएप या कॉल करें 8591750921 पर।